Hi students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are again going to solve the another 15 problems, that is from problem number 16 to 30 of the topic plane for MST CET. Last lecture में हमने 15 important problems solve किए हैं. Now again we are going to solve some 15 problems. All these problems are also very important. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So see problem number 16. Last lecture तक हमारे 15 problems complete हुए हैं, and now this is the problem number 16 for you of the topic plane for MST CET. So what we have given in this question: coordinates of point of intersection of the line with the plane. लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है. सो हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन, coordinates of point of intersection of a plane and a line. So this is the line, this is the plane, this is their point of intersection. So my given equation of line, see the question is x plus 1 by 1 is equal to y plus 3 by 3 is equal to z minus 2 by minus 2, and equation of this plane is given as 3x plus 4y plus 5z equal to 25. Okay. So I have to find this point of intersection. Line has this equation, plane has this equation. So this is the point on the line. Point of intersection lies on the line. So I will write the general point on this line. So let this M be the point of intersection. So coordinates of point of intersection of this line M are. So let M point has coordinates. General point x coordinate क्या होगा? Lambda minus 1. What will be the y coordinate of this point? 3 lambda minus 3, 3 lambda minus 3 minus 2 lambda. z coordinate क्या होगा? minus 2 lambda plus 2. As this is the point of intersection, this point will satisfy the equation of plane. तो इस पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज m also lies on this plane. So 3 into value of x coordinate is lambda minus 1 plus 4 into y coordinate is 3 lambda minus 3 plus 5 into z coordinate is minus 2 lambda plus 2 equal to 25. So now the problem is solved. From this equation we will get the value of lambda, and we will put the value of lambda in this point M, which will be the point of intersection of the line and the plane. So now solve this equation. This is 3 lambda minus 3 plus 12 lambda minus 12 minus 10 lambda plus 10 equal to 25. So 15 lambda minus 10 lambda, it is 5 lambda minus 15 minus 15 minus 5, so it will be plus 5 equal to 30. So lambda is equal to 6. So therefore the point of intersection of this line and this plane, put lambda equal to 6 here. So 6 minus 1 will be equal to 5. 6, 18 minus 3 is 15 minus 12 plus 2 is minus 10. So this is the point of intersection 5, 15 minus 10 of this line and the plane, which is in the option B. Okay. So now you can also check the option. Option में से आपको ऐसा point search करने का है, that point will satisfy the equation of plane and also the equation of line. ऐसा point option में से search करो, that should satisfy the equation of plane as well as the equation of line. So this is the first question, and here is the solution of this question number 16. Now we will go to the next problem number 16 of the topic plane for MST CET. So all the problems are very important.
See the solutions carefully. प्लीज़ नोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अगर आपको कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको आप नोट कीजिए. सी द क्वेश्चन नंबर 17 of the topic plane for MHTCT. Cartesian equation of the plane through the intersection of these two planes and perpendicular to this plane. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स का इक्वेशन मैंने फॉर्मूलेज के वीडियो में दिया था. शॉर्ट में उसे ऐसा ध्यान में रखने का है. फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. दैट इज द equation of plane passing through the intersection of two planes. So here the given equation of the two planes in which first plane is given as r dot 2i minus 3j plus 4k equal to 1 and second plane has equation r dot I minus j plus 4 equal to 0. So I have to find the equation of plane passing through the intersection of these two planes. So that equation of plane is, let equation of plane passing through the intersection of these two planes, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन में लिख रहा हूँ. So this will be first plane plus lambda into second plane equal to 0. So first plane का इक्वेशन हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे. So that will be 2x minus 3y plus 4z minus 1. Okay, and the equation of second plane in Cartesian form, I means x minus j means y plus 4 equal to 0. So this is the plane passing the intersection of these two planes. Now I will simplify this equation. So here is 2x plus lambda x, so it will be 2 plus lambda into x, 2x plus lambda x, 2 plus lambda into x, plus minus 3y minus lambda y minus 3 minus lambda into y minus 3 minus lambda into y plus 4z. यहाँ z की टर्म नहीं है, 4z as it is, and constant will be minus 1 plus 4 lambda equal to 0. But this plane is perpendicular to plane. This plane is perpendicular to plane. ये प्लेन किस प्लेन को परपेंडिकुलर है? सी इन द क्वेश्चन. r डॉट 2i माइनस j प्लस k प्लस 8 इक्वल टू 0. Therefore normals will be perpendicular. Normal 1 will be perpendicular to normal 2, and therefore normal का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. सो हियर फ्रॉम हियर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज देखिए. एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स. अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगी. तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 2 minus 1 1, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन आर ax प्लस by प्लस cz. इस प्लेन के नॉर्मल के रेशियोज देखिए 2 plus lambda minus 3 minus lambda 4, and direction ratios of normal to this plane are 2 minus 1 1. So a1 a2 right plus b1 b2 right plus c1 c2 4 will be equal to 0. Condition of perpendicular lines with direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0. So now we will solve this equation. 4 plus 2 lambda plus 3 plus lambda plus 4 equal to 0. तो ये हो जाएगा 3 lambda equal to 4 plus 2 lambda plus 3 plus lambda plus 4 equal to 0. 2 into 2 plus lambda minus 1 into minus 3 minus lambda plus 1 into 4. Okay, 4 plus 2 lambda plus 3 plus lambda plus 4 equal to 0. So it is 3 lambda equal to minus 11, and lambda will be equal to minus 11 by 3.
So I have to put the lambda in this equation. लैम्डा को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1, लैम्डा कितना मिला है -11/3 इंटू x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 6x माइनस 9y 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 12z माइनस 3 माइनस 11x माइनस 11y माइनस 44 इक्वल टू 0। सो 6x माइनस 11x माइनस 5x साइन चेंज कर देते हैं, प्लस 5x माइनस 9y माइनस 11y। सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 9y माइनस 11y माइनस 9 माइनस 20y। देखते हैं, सॉरी दिस इज द प्लस 11y। ओके, सो इट इज़ प्लस 2y, यानी इसके साइन चेंज करने के बाद माइनस 2y मिलेगा, प्लस 12z यानी माइनस 12z हो जाएगा। ये माइनस 47 यानी प्लस 47 तो इक्वल टू माइनस 47, यानी प्लस 47 इक्वल टू 0। सो दिस इज इन द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चेक कीजिए। So this is the required equation of the plane passing through the intersection of these two planes, and the formula is first plane plus lambda into second plane equal to 0. So this was the 17. See the next question number 18. Next question देखिए, question number 18 of the topic plane, important MCQs for MHTCT. Okay. So next in 18, distance between these two parallel planes. Distance between these two parallel planes. See the question number 18, parallel plane का distance क्या होगा? So what will be the distance between these two parallel planes? Given planes are r dot 2i minus 3j plus 6k equal to 5। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म होगा 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 5 इक्वल टू 0। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 ऑफ द प्लेन। दूसरा प्लेन दिया है मुझे r डॉट 6i माइनस 9j प्लस 18k प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? 6x माइनस 9y प्लस 18z प्लस 20 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल प्लेन्स। ये प्लेन पैरेलल्स है क्योंकि उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल है। नॉर्मल्स के कंपोनेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर इन प्रोपोर्शन 2/6, 1/3, माइनस 3y माइनस 9, 1/3, 6/18 is also 1/3. So normals are parallel, therefore planes are parallel. लेकिन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स सेम करने पड़ेंगे। सो आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 3। सो इट इज़ 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 20/3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। So now the distance between these two parallel planes ax plus by plus cz plus d1 equal to 0 and ax plus by plus cz plus d2 equal to 0 is given by mod of d1 minus d2 by square root of a square plus b square plus c square। फार्मूला का लेक्चर आप देखिए, फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स d1 माइनस d2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो हियर d1, ये है d1 देखिए -5 माइनस d2 कितना है 20/3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर
-3 का स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर कितना है 36। सो सिंप्लीफाई दिस -15 माइनस साइन को डिलीट कर देंगे 35/3 इंटू ये कितना होगा 7। सो इट इज 5/3। 5/3 is the distance between these two parallel planes and this is in the last option D. So this was 18. Now see the question number 19. फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। So see the next question number 19 on the board of the topic plane for MSTCT. If this line is parallel to this plane then the value of m is okay. Line is parallel to the plane, इसकी सब conditions मैंने explain किए थे। लाइन प्लेन को पैरेलल कब होती है, लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर कब होती है, लाइन प्लेन में कब होती है, तीनों कंडीशंस एक्सप्लेन किए थे। सो हियर इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इज r bar इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस j प्लस 2k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। और प्लेन का इक्वेशन है r डॉट 3i माइनस 2j प्लस एम के इक्वल टू 4। तो मुझे ऐसा दिया है इस प्लेन को ये लाइन पैरेलल है। तो लाइन के डायरेक्शन रेशोज, दिस इज द लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है 2 1 2। लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, so therefore the direction ratios of the line are 2 1 2. This is n bar means normal vector। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, उसके डायरेक्शन रेशोज क्या है 3 - 2m। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन नॉर्मल विल परपेंडिकुलर टू लाइन, नॉर्मल लाइन को परपेंडिकुलर होगी। सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, देयरफॉर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 will be equal to 0 and therefore a1 a2 3 into 2 6 plus b1 b2 minus 2 into 1 minus 2 plus c1 c2 m into 2 is 2m will be equal to 0। so 2m equal to ये हो जाएगा 4 minus 4, तो m कितना मिलेगा -2। so m equal to -2। option B is correct to this question। so this was question number 19। now see the question number 20। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 of this topic plane for MHTCT। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ओके, तो इस लाइन का इक्वेशन दिया है, सी द क्वेश्चन r इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। और प्लेन का इक्वेशन क्या है, r डॉट, प्लेन का इक्वेशन क्या है r डॉट 2i माइनस j प्लस k इक्वल टू 8। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन cos थीटा इक्वल टू, एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन cos थीटा इक्वल टू, बट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज sin थीटा इक्वल टू। सो द फॉर्मूला इज sin थीटा इक्वल टू b dot n, b vector dot n vector upon mod of b vector into mod of n vector। so this line is r bar equal to a bar plus lambda times b bar and this plane is r bar dot, ये क्या है n vector, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लिखने का है। so 2 into 1 2 plus minus 1 into 1 is -1 plus 1 into 1 is 1 by square root of
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 1 + 1 + 1 इंटू बी वेक्टर एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 4 + 1 + 1. Okay, so this will be 2 by root 3 into root 6. So this is 2 by root 3 into root 2 into root 3. So it is root of 2 by 3 sin theta equal to root 2 by 3. So therefore the angle theta will be equal to sin inverse of root 2 by 3. So option B is correct to this question. Angle between the line and the plane. Angle between the two planes is cos theta equal to n1 dot n2 upon mod of n1 into mod of n2. But angle between the line and the plane is sin theta equal to b dot n upon mod of b into mod of n. So this is the question number 20. Now see the next question number 21. 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21. सभी टाइप्स के प्रॉब्लम्स कवर किए हैं. प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन ही ऐसा हुआ है कि सब फॉर्मूले कवर हो जाए, पूरा टॉपिक की रिवीजन हो जाए. ओके, सो दिस इज द 21. वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय दीज टू लाइन्स. ओके, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है. फर्स्ट लाइन हैज इक्वेशन x इक्वल टू वाई z इक्वल टू 0. सेकंड लाइन हैज इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0. एक लाइन है, एक लाइन है. इस लाइन में दिया है z इक्वल टू 0, यानी दिस लाइन, इस लाइन पे हर एक पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0 है. इस लाइन पे भी हर एक पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0 है. और z कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है? xy प्लेन पे. z कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है? xy प्लेन पे. और xy प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? xy प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? k. तो उसका r वेक्टर इक्वेशन होगा r डॉट k पासिंग थ्रू ओरिजिन 0. ये आंसर है. दिस इज द आंसर. क्योंकि देख के ही पता चलता है बोथ द लाइन्स आर लाइंग ऑन द लाइन्स हुज जेड कोऑर्डिनेट्स आर 0. हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. इस लाइन को मैं लिखता हूँ x/1 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z माइनस 0/0. x/1 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z माइनस 0/0. अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? माइनस y. इसको ऐसा लिख सकता हूँ x/1 प्लस y/-1 इक्वल टू z माइनस 0/0. Equation of plane determined by these two lines means equation of plane containing these two lines. Equation of plane containing these two lines. So here first line is passing through the point 0, 0, 0, 0, 0, 0. And this line is also passing through the point 0, 0, 0. This is x1, y1, z1. This is x2, y2, z2. A1, B1, C1 direction ratios. A1, B1, C1. 1, -1, 0. A2, B2, C2. So equation of plane passing through point x1, y1, z1, x minus 0, y minus 0, z minus 0. Equation of line passing through the points passing through point x1, y1, z1 and parallel to two lines having direction ratios a1, b1, c1, a2, b2, c2. वो फॉर्मूला यूज करेंगे. या इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू लाइन्स x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2. ये डायरेक्शन रेशोज है, ये पॉइंट है. सो हियर 1, 1, 0. ये बनेगा 1, -1, 0 इक्वल टू 0. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये 0, 0. ये माइनस z इंटू -1, -1, -2 इक्वल टू 0. सो z इक्वल टू 0. z इक्वल टू 0 यानी कौन सा प्लेन? xy प्लेन. z इक्वल टू 0 किस प्लेन का इक्वेशन है? xy प्लेन. और xy प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या है? r डॉट k इक्वल टू 0. सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन नंबर 21. Next see the question number 22. Question number 22.
So in the question number 22, a variable line or variable plane moves in such a way that the sum of the reciprocals of its intercepts on the three coordinate axes is constant, then the plane will pass through the fixed point. Okay, तो एक प्लेन है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट के बारे में दिया है, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा प्लेन का. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1. This is the equation of the plane having x intercept a, y intercept b and z intercept c. So what he says, sum of the reciprocals of its intercepts, this is x intercept, this is y intercept, this is z intercept, sum of reciprocals of intercepts. तो इस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल 1/a, y इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल 1/b, z इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल 1/c, and this sum is given as constant k. Then this plane will pass through which point? Okay, so let this is equation 1. तो यहाँ पे भी मैं 1 लाऊंगा दोनों इक्वेशंस कंपेयर करने के लिए. सो इट इज़ 1/ak प्लस 1/bk प्लस 1/ck इक्वल टू 1. सो इट इज़ 1/k/a, 1/k/a, this is 1/k/b, this is 1/k/c equal to 1. दोनों इक्वेशन को देखिए, x upon a 1/k/a, y upon b 1/k/b, z upon c 1/k/c equal to 1 equal to 1. So it means this plane is satisfied by which point? 1/k, 1/k, 1/k. It means if this line passes through this point 1/k, 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 then only we get this condition. So from 1 and 2 plane passes through the fixed point. X coordinate क्या मिलेगा? 1/k, y coordinate 1/k, z coordinate is also 1/k. Very very simple question, and the answer is C. Okay, so this was 22. See the next question number 23. 23 में देखिए क्या दिया है. What is given in the question number 23? A plane meets the coordinate axis in the ABC such that the centroid of triangle ABC is PQR. Then equation of the plane is. Okay, इसमें भी इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करने का है. So let the equation of plane is, centroid भी दिया है. So this is x axis, y axis and z axis. This is the plane which meets the coordinate axis in ABC. ABC. And if the centroid of this triangle ABC is PQR, तो plane का equation क्या होगा? So let the equation of this plane is x/a plus y/b plus z/c equal to 1. So A point is on x axis, तो A point के coordinates क्या होंगे? a 0 0 because x intercept is a, y intercept b है, यानी B point के coordinates क्या होंगे? 0 b 0. B point lies on y axis, C point lies on z axis and z intercept कितना है? C, तो इसके coordinates क्या होंगे? 0 0 C. So centroid of triangle, इस triangle का centroid G, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज क्या है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स PQR. ओके, तो सेंट्रॉइड फार्मूला यूज करेंगे. सेंट्रॉइड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3/3, x1 प्लस x2 प्लस x3, a प्लस 0 प्लस 0/3 यानी a/3. y कोऑर्डिनेट Q, y1 plus y2 plus y3/3 b/3. z coordinate of centroid z1 plus z2 plus z3/3 c/3. तो यहाँ से मेरा a कितना मिला? 3p, b is 3q, c is 3r. इन ABC की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा. इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x अपॉन a क्या है? 3p
प्लस वाई अपॉन बी, बी क्या है 3q, ओके, प्लस जेड अपॉन सी, सो व्हाट इज सी 3r इक्वल टू 1, सो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, सो x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 नहीं, इक्वल टू व्हाट 3. So this is the equation of the plane in the option A. So this was the question number 23. Next देखिए question number 24 of the topic plane for MHT CT. So see all the questions carefully, note कीजिए important points, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए. ऑल द प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, 8, 6 एंड पैरेलल टू XY प्लेन. सी ऑन द बोर्ड, प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट A 7, 8, 6 एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू XY. एक शॉर्टकट ही मैंने बोला था, equation of plane passing through the point ABC and parallel to XY plane, parallel to YZ plane, parallel to XZ plane is. तो अगर ABC पॉइंट में से पास होने वाला प्लेन XY प्लेन को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, Z इक्वल टू C. एंड इफ ABC पॉइंट में से पास होने वाला प्लेन YZ प्लेन को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू A. एंड इफ द प्लेन इज पैरेलल टू XZ प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू B. तो हमें पूछा है पैरेलल टू व्हाट, XY प्लेन. पैरेलल टू XY प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, z इक्वल टू C, z इक्वल टू C, z इक्वल टू C, z इक्वल टू C, z इक्वल टू 6 is the answer to this question and option A is correct. तो ऐसे छोटे छोटे फार्मूले भी हमें बहुत काम आते हैं और हम आसानी से कम टाइम में इसका आंसर बोल सकते हैं. सो दिस इज 25, दिस इज 24. नाउ सी द नेक्स्ट 25 ऑन द बोर्ड. लेट द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, लाई इन दिस प्लेन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज. ओके, तो मेरा लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/-5 इक्वल टू z प्लस 2/2. दिस लाइन लाइज इन दिस प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है x प्लस 3y, x प्लस 3y, x प्लस 3y माइनस अल्फ़ा z प्लस बीटा इक्वल टू 0. ये लाइन इस प्लेन में है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी. लसी फर्स्ट लाइन अगर इस प्लेन में होगी तो नॉर्मल लाइन को परपेंडिकुलर होगी. Normal to the plane will be perpendicular to the line. Because line lies in the plane, it means line is parallel to plane, therefore normal will be perpendicular to plane. Normal is perpendicular to line, तो normal के डायरेक्शन रेशोज क्या है, 1, 3 माइनस अल्फ़ा. नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या है, 1, 3 माइनस अल्फ़ा. लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है, 3 माइनस 5, 2. Okay, so these are the direction ratios of the line and these are the direction ratios of normal. Line and normal are perpendicular, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 minus 15 minus 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0. तो 2 अल्फ़ा बनेगा माइनस 12, अल्फ़ा बनेगा माइनस 6. अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है माइनस 6. अब अल्फ़ा मुझे मिल गया है तो मैं अल्फ़ा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे प्लेन का इक्वेशन मिलेगा x माइनस 3y अल्फ़ा इज माइनस 6 यानी प्लस 6z प्लस बीटा इक्वल टू 0. अब बीटा कैसा मिलेगा, हाउ टू फाइंड बीटा. सी हियर द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट
2 1 माइनस 2, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1. So line is passing through the point 2 1 minus 2. This point also lies on the plane. 2 1 minus 2 a point plane पे होगा. So this point will satisfy this equation. So x equal to 2, y equal to 1, 2 plus 3 minus 12 plus beta equal to 0. So 5 minus 12 minus 7 equal to minus beta. तो beta कितना मिला, 7 minus 6 7 is in the first option A. And this is the question number 25. See the next question number 26. Question number 26 on the board of the topic plane for MHTCT. And this question is asked in the previous year question है GMAN का, but question is very good, that's why we are going to solve it for MHTCT also. इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. If the angle between the line and the plane is cos inverse of root of 5/14, तो लैम्डा की वैल्यू पूछी है. ओके, लाइन का इक्वेशन क्या है, x/1, x के नीचे कुछ नहीं है, 1 होता है, y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 3/λ. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. और मेरा प्लेन क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन थीटा कितना दिया है, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 5/14. तो कॉस थीटा क्या होगा, रूट ऑफ 5/14. तो साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस रूट ऑफ 1 साइन थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 5/14. So 9/14, so it is 3/√14, right? So this is sin theta, but angle between line and the plane is given by sin theta, इसलिए मैंने sin theta की वैल्यू निकाली है. So angle between the line and the plane is sin theta is equal to A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन, और प्लेन के डायरेक्शन रेशो, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 लैम्डा. सो दिस डॉट दिस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस लैम्डा इंटू 3 लैम्डा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 1 प्लस 4 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 10, तो ये हो जाएगा √14. एंड दिस साइन थीटा इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना है, 3/√14. एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, फार्मूला फिर से देखिए, A1 B1 C1 ये लाइन के डायरेक्शन रेशोज और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज, A1 B1 C1 A2 B2 C2. सो दिस गेट कैंसल. सो इट इज 5 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, 5 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 इंटू 5 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर 25 प्लस 30 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर. दिस कैंसल. 30 लैम्डा इक्वल टू 20, तो लैम्डा कितना मिला, 2/3. So 2/3 is the answer to this question, which is in the option C. So this was question number 26. Now see the next question number 27 of the topic plane for MHTCT. 27 देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन, पढ़िए अच्छी तरह से क्या दिया है, क्या फाइंड करने का है. क्वेश्चन नंबर 27, डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन. वाओ, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैसे निकालेंगे. ओके, तो मेरा लाइन का इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस j माइनस 2k. ये लाइन का इक्वेशन है.
and equation of plane is r dot I plus 2j plus 2k इक्वल टू 10। अब लाइन और प्लेन का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो पहले हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दिस इज़ माय प्लेन। अब लाइन किस पोजीशन में है, लाइन प्लेन को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कुछ एंगल बनाती है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। सो हियर नॉर्मल जो है प्लेन की, तो उसके डायरेक्शन रेशोज़ क्या है? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़ देखिए 1 2 2। ओके, अब लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ क्या है? लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ 2 1 -2, ये लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ हैं 2 1 -2। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़ 1 2 2। A1 A2 देखिए 2 × 1 2 प्लस 2 × 1 2 प्लस 2 × -2 -4 0 आ रहा है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ रहा है। इसका मतलब लाइन और प्लेन की पोजीशन क्या होगी? इट मीन्स द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन को परपेंडिकुलर है। बिकॉज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हमें क्या मिल रहा है? 0। इट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। अब लाइन और प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो लाइन पे कोई एक पॉइंट ले लो, वहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो प्लेन पे। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, क्योंकि लाइन और प्लेन पैरेलल है, किसी एक पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स होगा। तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? ये लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2 2 -1। लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार, पासिंग थ्रू पॉइंट a पैरेलल टू वेक्टर b। लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब प्लेन का इक्वेशन क्या है? इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 10 इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलिए, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पुट दिस इनटू दिस, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 2 × 2 4, x की वैल्यू 2, 2 × 2 4, फिर से वो z इज़ -1 -2 -10 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 4 c स्क्वायर फिर से 4, दिस कैंसल -6 यानी 6 बाय 3 इक्वल टू 2। सो 2 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन and this plane, and the answer to this question is last. So this was 27. Now see the next question number 28. Question number 28 of the topic plane for MHTCT. देखिए 28 बड़े क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। लाइन का इक्वेशन दिया है L, प्लेन का इक्वेशन E। तो इसमें इन दोनों में क्या रिलेशन है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कोई एंगल बनाते हैं, या लाइन लाइज इन द प्लेन, ये सब हमें चेक करने का है। सो मेरी लाइन है x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3, और मेरा प्लेन है E, x -2y प्लस z इक्वल टू 6। ओके, तो लाइन और प्लेन में क्या रिलेशन है? तो मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ लाइन के डायरेक्शन रेशोज, लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है? 1 2 3। और नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशोज, ये प्लेन का इक्वेशन है 1 -2 1। एक बार चेक करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या मिलती है? A1 A2 कितना है? 1, ये -4, ये +3 0 आ गया। लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। लाइन नॉर्मल को परपेंडिकुलर कब होगी? लाइन प्लेन के नॉर्मल को परपेंडिकुलर कब होगी? जब लाइन प्लेन को
लाइन प्लेन को क्या होगी, पैरेलल। ओके, so as the normal and the line are perpendicular because a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0, so normal is perpendicular to line, therefore plane and line are parallel, so line is parallel to the plane, last option is correct। लेकिन लाइन अगर प्लेन में भी होती तो पैरेलल होती है, तो वो भी चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज टू बी चेक, लाइन लाइज इन द प्लेन। तो लाइन कहाँ से पास होती है, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं। 0 0 0 0 इज इक्वल टू 6, दिस ओरिजिन इज नॉट सेटिस्फाइंग द equation of plane, therefore line does not lie in the plane but line is parallel to the plane, so this option D is correct। And the next is 29 of the topic plane for MHT CT। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दिस क्वेश्चन इज ऑन द कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। दो लाइन्स कब कोप्लेनर होती हैं, दो लाइन्स कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 equal to 0। But here we have to write the equations line in proper way, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यस और टी पैरामीटर्स है। तो लाइन को मैं किस तरह से लिखता हूँ, मेरी फर्स्ट लाइन है x इक्वल टू 1 प्लस यस, y इक्वल टू -3 माइनस लैम्डा यस, z इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा यस। ओके, तो ये जो लाइन है इसमें यस पैरामीटर है, तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस 1 बाय 1, x माइनस 1 बाय 1 इक्वल टू यस मिलेगा, यस पैरामीटर है x माइनस 1 इक्वल टू यस। ओके, यहाँ पे देखिए y प्लस 3 बाय माइनस लैम्डा इक्वल टू यस, यहाँ पे देखिए z माइनस 1 बाय लैम्डा इक्वल टू यस, तो यस पैरामीटर मिल गया। तो यहाँ पे ये हो गया a1 b1 c1, एंड ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 -3 1, ये पॉइंट ऑन द लाइन एंड दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। नाउ सी द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। लाइन का सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1/2t, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू 1 प्लस टी, z इक्वल टू 2 माइनस टी, यहाँ पे पैरामीटर क्या है t, तो ऐसा इधर राइट हैंड साइड में t आना चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन लिखूंगा 2x इक्वल टू टी यानी x अपॉन 1/2 इक्वल टू टी, 2x इक्वल टू टी यानी x अपॉन 1/2 इक्वल टू टी, इक्वल टू क्या मिलेगा t, तो यहाँ पे t कैसा मिलेगा, y माइनस 1/t, यहाँ पे t कैसा मिलेगा, z माइनस 2 बाय माइनस 1 इक्वल टू टी, तो यहाँ पे t पैरामीटर होगा, दिस इज a2 b2 c2, और इस लाइन का पॉइंट क्या है, 0 1 2, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, so this is x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, so these two lines are coplanar if x2 minus x1, फार्मूला क्या है, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए x2 minus x1 0 minus 1 minus 1, 1 plus 3 4, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, अब देखिए a1 b1 c1, 1 minus लैम्डा लैम्डा, a2 b2 c2, 1/2, y minus 1/1, y minus 1/1 इक्वल टू t, तो ये हो गया 1/2 1 minus 1, 1/2 1 minus 1 इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट को मैं आपको आंसर दे देता हूँ। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट यू विल गेट द लैम्डा इक्वल टू -2 इज इन द लास्ट ऑप्शन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक प्लेन फॉर MHT CET। सॉल्व करते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी फार्मूला कवर करने का ट्राई किया है। ओनली 30 क्वेश्चंस आर सॉल्व बट ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो शेयर
इन द क्वेश्चन नंबर 30 अगेन इंटरसेप्ट फॉर्म में ही हमें इक्वेशन दिया है। इफ दिस प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस 1 इक्वल टू 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC, देन सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज। तो मेरा प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 1/a प्लस y अपॉन 1/b प्लस z अपॉन 1/c इक्वल टू 1। तो दिस प्लेन, इस प्लेन के x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट क्या होंगे? इस प्लेन के x y z इंटरसेप्ट क्या होंगे? a b c में कट कर रहा है तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये OA x इंटरसेप्ट होगा 1/a 0 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट 1/a है, y इंटरसेप्ट 1/b है, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 1/b 0, और z इंटरसेप्ट 1/c है तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 1/c। तो मुझे पूछा है इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। सो सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज x1 प्लस x2 प्लस x3/3 1/a प्लस 0/3। तो इसी तरह से 0 प्लस 1/b/3 मिलेगा और 0 प्लस 1/c/3 मिलेगा। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1/3a 1/3b 1/3b एंड 1/3c। दिस इज द centroid of triangle ABC, which is in the last option. So students, this was the last problem of this lecture of the topic plane for MST sheet। तो इस तरह से हमने ये पूरा वेक्टर से लेके वेक्टर के बाद 3 डायमेंशन में डायरेक्शन, कोसाइन डायरेक्शन, रेशोज़ भी देखा है, उसके इम्पोर्टेंट फार्मूलेज, प्रॉब्लम्स, line के important formulas, problems, and now these are the important formulas and the problems, important MCQs of the topic plane. So now we will stop here and we will continue with our last topic। लास्ट नहीं है, एक टॉपिक अभी भी बाकी है, लीनियर प्रोग्रामिंग, वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका एक लेक्चर आपने पहले देखा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। तो उसके आगे के लेक्चर्स हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।